ऑडिबल नाउ? अब जा रही है आवाज़? यस। सो आई एम सॉरी, देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, आवाज़ आप तक शुरू में नहीं पहुंच पाई। तो आज हमारे रिवीजन सीरीज की 10वीं क्लास है। दिस इज द 10th क्लास ऑफ आवर रिवीजन सीरीज एंड सेकंड क्लास ऑन मॉडर्न इंडिया. In the first class on modern India, we talked about constitutional reforms as part of the consolidation of the British Raj and also as part of the constitutional consolidation and constitutional progress of the colonial regime. Is that clear? ठीक है ना, आप कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके. सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी मेड अ लिस्ट फॉर यू ऑन द बोर्ड दैट द ईयर वाज 1757. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, we have the East India Company emerging as a political power, as a military power. And earlier, the presidency that was based on Fort William. Of course, there is a tendency to use the term Bengal also now. So we have governors of Fort William or governors of Bengal. And from 1757 to 1772, we can say 1773 also, when the Regulating Act was passed. We talked about Regulating Act in our previous class on revision. We have officials called governors of Bengal or governors of Fort William. And as you can see, I'm enlarging it. From 1757 to 1752, we have 4 or 5 governors of Bengal. The first is Robert Clive, followed by Henry Vansittart, Harry Welst, John Cartier, Warren Hastings. Now, this last governor became the first Governor General of Bengal once we have the Regulating Act of 1773 that created the post of Governor General of India. It was part of the strategy to centralize power in India. Then we have a series of officers known as Governors General of Bengal, and in this series we have important names like Warren Hastings, who was the last governor of Bengal and also became the first Governor General of Bengal, followed by Cornwallis, Sir John Shore, Lord Wellesley, and then again Cornwallis revisited India as the Governor General of Bengal. हालांकि इस समय उसका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता. लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट and Lord William Bentinck. Lord William Bentinck. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have 9 governors. उसमें बीच में कुछ एक्टिंग गवर्नर्स भी आएंगे जो कि थोड़े समय के लिए रहेंगे, लेकिन एक्टिंग गवर्नर्स को हम लोग छोड़ के चल रहे हैं. हाँ, अगर उनके पीरियड में कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है तो उसे हम लोग देख लेंगे. So from 1773, that is from Regulating Act of 1773 to the Charter Act of 1773, we have a series of governors general of Bengal with these famous names. Then in this is not 1773. I am extremely sorry for this. I tend to forget not years but centuries. This is 1833. So now in 1833, there was an act known as the Charter Act that created a new post, new designation, and that was the designation of Governor General of India. And the last of the Governors General of Bengal, Lord William Bentinck, also became the first Governor General of India. Now in this series we have some officers. 5 major names are there: Lord William Bentinck, Lord Auckland, Lord Ellenborough, Lord Harding first, बाद में एक और हमें मिलेगा, Lord Dalhousie and Lord Canning. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 names of the Governors Generals of Bengal, covering a period roughly from 1833 to 1858. 1833 when the Charter Act was passed, and 1858 when the power was transferred
फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन। जब पावर ट्रांसफर हो गया, so the same officer who was the Governor General of India also became a representative of the British Crown, and in that new capacity he was to be known as the Viceroy also. हालांकि टर्म गवर्नर जनरल कंटिन्यू टू बी यूज्ड, और वो सो फार एज ही वाज द हेड ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, और जब वह ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता था तो वायस राय के नाम से जाना जाता था। I think for the post 1858 era, the term Viceroy is more popular than the term Governor General. और यहाँ पर beginning with the last of the Governors General of India, Lord Canning, who also became the first of the Viceroys, we have a series, बड़ी लंबी सीरीज है। इसमें आप देखें कि बहुत सारे नाम आपको दिखेंगे एक साथ, ये बोर्ड पे आ भी नहीं रहे हैं, बोर्ड भी थोड़ा स्लो लग रहा है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लेंसडाउन। लेंसडाउन एक जगह भी है इनके नाम पर, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। मैं इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर लॉर्ड एल्गिन एक बार और आते हैं, मतलब दूसरे नाम से, दूसरा आदमी उसी नाम से आता है, उसको लॉर्ड एल्गिन सेकंड कहते हैं। फिर आपने एक नाम तो जरूर सुन रखा होगा, लॉर्ड कर्जन का। फिर लॉर्ड मिंटो, पहले भी एक मिंटो आ चुके हैं इसलिए इनको हम लॉर्ड मिंटो सेकंड कह सकते हैं। लॉर्ड हार्डिंग पहले भी आ चुके हैं, लॉर्ड हार्डिंग एक बार फिर आते हैं, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। उसके बाद से चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, इरविन, ये नाम बड़ा मशहूर है, गांधी जी के साथ इनकी बातचीत हुई थी, उसके बाद एक पैक्ट हुआ था। आफ्टर दैट गांधी decided to participate in the round table conferences and he also participated in the second one, गांधी इरविन टॉक। हिस्ट्री में बहुत ही कंट्रोवर्शियल माना जाता है। फिर उसके बाद से विलिंगडन है, लिनलिथगो हैं, वॉवेल हैं एंड माउंटबेटन है, और इनका पूरा पीरियड है 1857 से लेकर 1947 तक। तो अगर इसको हम कंप्रेस्ड फॉर्म में देखें तो चार तरह के टॉप ऑफिशियल्स मिलते हैं हमें इंडिया में एज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम। पहले गवर्नर्स ऑफ बंगाल या गवर्नर्स ऑफ फोर्ट विलियम, उसके बाद से गवर्नर्स जनरल ऑफ बंगाल, देन गवर्नर्स जनरल ऑफ इंडिया एंड देन दी वाइसरॉयज। रफली एक लिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है बोर्ड के ऊपर ताकि थोड़ा हमारा टाइम बचे। अब एक एक करके हम इनको देखेंगे। ये पतली सी लकीर ही हमें दिखाई दे रही है, इन सब नामों को हमें कवर करना है इन टर्म्स ऑफ देयर डिटेल्स। इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट होगा, खासतौर से अगर हम नेशनल मूवमेंट के सीक्वेंस को देखें तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू रिमेंबर देयर सीक्वेंस ऑल्सो बिकॉज दिस नेम्स आर एसोसिएटेड विद सम इम्पॉर्टेंट नोटिसेबल डेवलपमेंट्स। इनका स्पेसिफिक ईयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में इंटरेस्ट थोड़ा सा ईयर्स में होता है तो कोशिश करेंगे कि इनका स्पेसिफिक ईयर भी देखते चले। तो चलिए अब हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं इनके ऊपर। इसमें कुछ जनरल चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं कि सबसे पहला नाम आ रहा है वो है रॉबर्ट क्लाइव का, सबसे आखिरी नाम आ रहा है माउंटबेटन का। सो वी हैव अ सीरीज ऑफ टॉप ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया with changing designations from governors to the viceroys. We have a long series जिसके एक छोर पर रॉबर्ट क्लाइव, जो जिसे अगर ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर मान सकते हैं हम। हालांकि ब्रिटिश रूल की जब इंडिया में बात होती है, कॉलोनियल रूल की बात होती है, तो वी डोंट टॉक अबाउट एनी फाउंडर, बट इफ देयर इज वन पर्सन हु कैन बी एक्सेप्टेड एज द फाउंडर, इट वाज रॉबर्ट क्लाइव। बड़ा मशहूर नाम है इंडियन हिस्ट्री का। और लास्ट में हमें माउंटबेटन दिखते हैं। माउंटबेटन को भेजा ही इसलिए गया था कि वो पावर ट्रांसफ़र के लिए अरेंजमेंट कर सकें, और इन्होंने जो प्लान बनाया उसी के बेसिस पर इंडिया का पार्टीशन भी हुआ और इंडिया को आज़ादी भी मिली। सो नाउ वी कैन कंटिन्यू विथ दिस ऑफिसर्स वन बाय वन।
इनके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखते हुए चलेंगे। अब मैं इसे मिटा देता हूं। आप मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिए होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। जिसमें सबसे टॉप पे हमें गवर्नर्स दिख रहे हैं, गवर्नर्स ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद से गवर्नर्स जनरल ऑफ बंगाल। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। फिर वी हैव गवर्नर्स जनरल ऑफ इंडिया। और फिर लास्ट में वी हैव दी वायसरॉयज। वायसरॉयज की भी एक लंबी लिस्ट है, मैं एक साथ इनको लाने की कोशिश करता हूं। लॉर्ड कैनिंग टू माउंटबेटन, द पीरियड इज 1857 to 1947। तो हमारे पास एक कॉमन लिस्ट हो गई। अब हम लोग एक एक करके इनको देखते हैं, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको देखते चले जाएंगे। कुछ फैक्ट्स इनके बारे में पूछे जा सकते हैं, सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो अब ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और फिर हम लोग एक एक करके चलते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दी गवर्नर्स ऑफ बंगाल। जैसा कि उस लिस्ट में भी हमने आपको दिखाया था कि फ्रॉम 1757 टू 1772 73 इस तरह के ऑफिसर्स हमें मिलते हैं। और इनमें सबसे पहला और मशहूर नाम है हमारे लिए, ये उसी लिस्ट का इलाबोरेशन है जो लिस्ट में आपको दिखा रहा था। वो नाम है रॉबर्ट क्लाइव का। Robert Clive had a very interesting career in India. He joined the company as a junior officer, worked as a clerk in the Madras Presidency, and it was during the Second Anglo-French War he got an opportunity to display his military genius. And after that, he kept on rising to prominence. And as I told you, that if today there is one person who can be accepted as the founder of British rule in India, we can name him. Though we don't talk about any founder of the British rule, rather we can say founders of the British rule in India. तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में अगर हम देखें तो ये 2 बार इंडिया में इसका रोल दिखाई देता है। इसका अलग अलग रोल है। इसके बारे में कुछ चीज़ें हम तो जानेंगे, जैसे he was a clerk but rose to military prominence during the Second Anglo-French War. Muhammad Ali was a fugitive prince of Karnataka, जिसने त्रिचनापल्ली नाम की जगह पर शेल्टर ले रखा था जहां फ्रेंच उसको घेरा डाले हुए थे। And now British people decided to intervene in this conflict because any French advantage in India was perceived as a British disadvantage in India. तो उसके तहत कोशिश ये की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोशिश ये की कि मोहम्मद अली को हेल्प की जाए फ्रेंच के अगेंस्ट। तो उस समय त्रिचनापल्ली के घेरे में, उसके सीज में कोई बहुत प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। तो रॉबर्ट क्लाइव मेड अ सजेशन कि लेट अस ले a siege of the capital of Karnataka, that was Arcot. The first thing about him is that he is associated with the siege of Arcot during the Second Anglo-French War. ये इसका पहला मेजर अचीवमेंट आप मान सकते हैं। जस्ट विद द हेल्प ऑफ 200 सोल्जर्स
उसने आर्काट के ऊपर घेरा भी डाला, उस घेरे को बनाए भी रखा, जिसकी वजह से त्रिचनापल्ली पर प्रेशर कम हुआ, और वहाँ से फ्रेंच ट्रूप्स जब हटे तो बहुत आसानी से मोहम्मद अली को रेस्क्यू किया गया और उसे फिर ब्रिटिश पपेट के तौर पे कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। In the last class I have used mainly English, so purely English. So some of you asked me particularly to use Hindi. हालांकि मैंने पहले वादा किया था आपसे कि क्लास हिंदी और इंग्लिश चलेगी दोनों, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम खासतौर से नॉर्थ इंडियन लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके, जो अंग्रेजी भी समझ लेते हैं, हिंदी भी समझ लेते हैं। लेकिन कभी कभी हिंदी मीडियम लोगों को भी अंग्रेजी बोलने का जोश चढ़ जाता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा मेरे साथ। तो कल मैंने हिंदी इस्तेमाल नहीं किया, तो टुडे आई एम ट्राइंग टू मिक्स बोथ। तो ही इज एसोसिएटेड विद सीज ऑफ आर्कॉट ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार, और यहाँ से इसका मिलिट्री राइज शुरू होता है। नाउ हिज नेम इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पर्सन इज कि इन इंडिया वी हैव मराठास, and Marathas dominated the Deccan, western part, coastal areas, what we can say Konkan coast, and Marathas are also known for their navy. और उनकी नेवी, जैसा कि उनका कन्फेडरेशन था, बहुत यूनाइटेड नहीं रही। एक वक्त ऐसा आया कि वी हैव मराठा नेवी कैप्टन्स जो कि अपने अपने अलग अलग इलाकों में डोमिनेट करते रहे। तो एक ऐसा ही बहुत फेमस नाम है जिसको डिफीट दिया इसने, डिफीट ऑफ कान्होजी, ये नाम याद रखिएगा, कान्होजी आंग्रिया, द मराठा नेवल कैप्टन। आई होप आई हैव रिटन द स्पेलिंग ऑफ कैप्टन करेक्टली। ये वेस्टर्न कोस्ट पे इन्होंने डिफीट दिया था, और इस समय पेशवा ने भी कान्होजी आंग्रिया के अगेंस्ट ही काम किया था, उसके सपोर्ट में काम नहीं किया था। दिस शोज द इंटरनल डिस्प्यूट और इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द मराठास। देन अगर अगला अचीवमेंट देखें रॉबर्ट क्लाइव का, तो वो शुरू होता है बंगाल में। बंगाल में वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी, and if there is one person who can be accepted as the chief architect of the battle of Plassey, so it was Robert Clive. So बंगाल में कुछ डेवलपमेंट ऐसे हुए कि जब यूरोप में 7 years वार की शुरुआत हुई, and in India both the companies started preparing for a war that of course took place a little later and came to be known as the Third Anglo-French War. So British in Bengal also started making preparations, and as a part of their preparations, they started fortification of Fort William, something that was objected to by the Nawab, local Nawab of Bengal, Sirajuddaulah. ये कहानी आपको पता है, और सिराजुद्दौला को ये लगा कि दैट इज एन अटैक और अ चैलेंज टू हिज सुजरेंटी और सोवरेंटी। और उस समय फ्रेंच थे चंद्रनगर में, जो कि बंगाल में ही था। अंग्रेजों ने कहा कि दे आर डूइंग इट फॉर डिफेंडिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द फ्रेंच ऑफ द चंद्रनगर। सिराजुद्दौला ने वादा भी किया कि आई विल बी डिफेंडिंग, लेकिन उस वादे को बहुत सीरियसली ये लोग नहीं ले सकते थे, बिकॉज साउथ में जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा था कर्नाटक में और हैदराबाद में, कि इंडियन पावर्स के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो किसी भी यूरोपियन पावर के अगेंस्ट जा सके, इंक्लूडिंग द फ्रेंच। तो उनको ये लगा था कि भले सिराजुद्दौला कह रहा है कि ही विल बी डिफेंडिंग, but he will not be able to defend. So they had continued with their program of fortifying or repairing the fortification of Fort William. उसी ज़माने में सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया था फोर्ट विलियम पे, कलकत्ता को ऑक्युपाई कर लिया था, उसका नाम अलीनगर रख दिया था। और जो कलकत्ता में या फोर्ट विलियम के जो अंग्रेज थे, वो एक फुल्टा नाम के आइलैंड के ऊपर शेल्टर ले चुके थे। सो ब्रिटिश इन बंगाल वर इन क्राइसिस। उसी समय रॉबर्ट क्लाइव एंड वाटसन, मेरे ख्याल से ये नाम आपके सुने हुए होंगे, रिवाइज हो रहा होगा आपका। रॉबर्ट क्लाइव एंड वाटसन आते हैं, और आते ही ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन करते हैं, जिसमें कि सिराजुद्दौला लगभग इनकी बातें मान लेता है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर हमारे लिए उसके डिटेल्स अभी इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन उसमें सिराजुद्दौला ने कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड अडॉप्ट किया था और फोर्टिफिकेशन को ही एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि जो क्वाइंस ढालती थी कंपनी अपनी बॉम्बे में, कलकत्ता में भी उसे ढालने का राइट मिल गया। और फिर उसके साथ साथ जो दस्तक का मिसयूज हो रहा था बंगाल में, उसको रोकने की भी कोई कोशिश नहीं हुई इस ट्रीटी के तहत। सो आफ्टर दिस ट्रीटी, जो अंग्रेज थे बंगाल में, यानी कि जो फोर्ट विलियम के ऑफिसर्स थे, दे वांटेड रॉबर्ट क्लाइव एंड वाटसन टू लीव बंगाल, कि भाई तुम मद्रास से आए हो हेल्प करने, वापस जाओ, हमारा काम हो गया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव डिस्प्लेड अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट। उसने लोकल सिनेरियो के बेसिस पर एक्ट करना नहीं चाहा, बल्कि वो उसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ध्यान में रखा। उसे पता था कि 7 इयर्स वार की शुरुआत हो चुकी है और इंडिया में वार होने वाला है दोनों ईस्ट इंडिया कंपनीज के बीच में, फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। और उस समय अगर बंगाल का नवाब, जो कि इंडिया का रिचेस्ट प्रोविंस है, कोई ऐसा आदमी हो जो होस्टाइल हो ईस्ट इंडिया कंपनी का और फ्रेंच के साथ फ्रेंडली हो, ये खतरनाक हो सकता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन के लिए। तो इस चीज़ को उसने ध्यान में रखा, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, गोइंग अगेंस्ट द suggestions given by the local officers, he continued with his conspiracy against the Nawab of Bengal Sirajuddaulah, और उसी का नतीजा था बैटल ऑफ पलासी। So if there is one person who can be identified as the chief architect of the Battle of Plassey, it was Robert Clive। और हमें पता है बैटल ऑफ प्लासी का इंडियन हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है। इसके साथ ही हम मानते हैं कि इंडिया में कोलोनियलिज्म की शुरुआत होती है। प्लासी के बाद ये चला गया था, लेकिन फिर लौट कर आता है। अगर इसका हम स्पेशल टाइम ब्रैकेट देखें कि ये कब कब रहा, तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1760 तक इसको चुन लिया गया था बंगाल का गवर्नर। फिर इसके बाद से इसकी एक रिटर्निंग होती है, वो होता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो फिर ये लगभग 65 से और 67 के बीच में भी गवर्नर रहता है। तो इसका 2 पीरियड है, फ्रॉम 1757 टू 1760 एंड 65 टू 67। तो यहाँ तक इसका रोल है। बंगाल में जो भी रिवोल्यूशंस होते हैं, सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बनाना, मीर जाफ़र से 24 परगना का डिस्ट्रिक्ट ले लेना, या फिर बाद में और भी जो डेवलपमेंट्स होते हैं, मीर कासिम वगैरह आता है 1760 में, तो वहाँ से ये वापस चला गया था। लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो इसे दोबारा भेजा जाता है, एंड दिस टाइम ही वाज acting as a diplomat, as a politician, and some of you may be knowing about the treaties of Allahabad. हिस्ट्री में पुराने नाम चल जाते हैं इन ट्रीटीज को। ट्रीटी ऑफ प्रयागराज नहीं कहेंगे हम लोग अभी, ट्रीटीज ऑफ अलाहाबाद। 1765 में ये ट्रीटीज हुई, 2 ट्रीटीज हुई। इसमें से जो पहली ट्रीटी थी, दैट वाज विद द नवाब ऑफ अवध। पहली दूसरी इस तरह से काउंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ 2 ट्रीटीज हुई तो उसका एक सीक्वेंस बना लेते हैं। ये नवाब ऑफ अवध, सुजाउद्दौला। कुछ रिलेटेड फैक्ट्स भी हम लोग कवर करते चलेंगे, आखिर हमारा मकसद तो रिवीजन का ही है। सुजाउद्दौला। और इस ट्रीटी के तहत आपको याद होगा कि एक वार इंडेमनिटी वसूली गई अवध से। अवध को एनेक्स तो नहीं किया गया, और एक डिफेंसिव अलायंस किया गया, और अवध से इलाहाबाद और कड़ा के जिले लेकर मुगल एम्परर को दे दिए गए। तो ये कुछ काम, ये जो भी काम थे, ये काम करने वाला था रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की ट्रीटी से आप इसको लिंक कर सकते हैं। और दूसरा हुआ था शाह आलम सेकंड के साथ। शाह आलम सेकंड बैटल ऑफ बक्सर में हारा था। ही हैड बीन पार्ट ऑफ एन अलायंस फॉर्ज्ड बाय मीर कासिम। तो इसके साथ जो इसने अलायंस किया, इसमें भी मुगल एम्परर को उसने अपने प्रोटेक्शन में लिया, क्योंकि उसके नाम का, उसकी पोजीशन का, उसकी लेजिटिमेसी का ये इस्तेमाल करने वाले थे। ब्रिटिश प्रोटेक्शन, दैट इज शाह आलम एक्सेप्टेड द ब्रिटिश प्रोटेक्शन। और उससे भी इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि दिस पर्सन हुज नेम वाज शाह आलम,
ही ग्रांटेड दीवानी राइट्स, रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट, दीवानी राइट्स टू द कंपनी, और ये बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का दीवानी राइट था। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि हु निगोशिएटेड द ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद और वॉट एवर अरेंजमेंट्स वर मेड एज पार्ट ऑफ द ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद, so the chief architect again here was Robert Clive. So this is in short we can say Robert Clive for us, starting his career in Madras as a clerk. This is a brief recapitulation. Acquiring fame by playing role in the siege of Arcot as part of the Second Anglo-French War. Then also acquiring further fame by defeating Kanoji Angriya, the famous Maratha leader, naval captain. Then coming to rescue the British in Bengal, who had been in crisis because of the invasion of Sirajuddaulah, and then negotiating the Treaty of Alinagar with Sirajuddaulah, and despite compromising attitude displayed by Sirajuddaulah, moving on with his design to replace Sirajuddaulah by a friendly Nawab and orchestrating the famous Battle of Palasi, whose details we cannot discuss here, but we know it. And then after the battle, placing Mir Jafar on the throne of Bengal, and then going to England, then coming back after the Battle of Buxar and negotiating treaties of Allahabad with the defeated powers in the year 1765 with the Nawab of Awadh, Sujaud-Dawla. There was a policy of, we cannot use the term subordinate alliance, लेकिन एक डिफेंसिव अलायंस तो था जो कि प्रैक्टिकली सबॉर्डिनेट अलायंस भी था। इसी के लिए कुछ लोग रिंग फेंस पॉलिसी का भी इस्तेमाल करते हैं, रिंग फेंस वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर पॉलिसी ऑफ बफर स्टेट। तो अगर पूछे कि पॉलिसी ऑफ बफर स्टेट किसने किया, तो ये भी इसी बंदे ने किया विद अवध। मुगल एम्परर को प्रोटेक्शन में किसने लिया? इसी ने लिया। दीवानी राइट्स किसने लिया? इसी ने लिया। हाँ, इससे एक और चीज़ याद आई कि बंगाल में जो फेमस डुअल रूल था, जिसमें कि दीवानी राइट वाज vested with the East India Company and Nizamat right was vested with the Nawab of Bengal. इस पूरे अरेंजमेंट को जो कि अपने पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर के लिए जाना जाता है, इस पूरे डुअल रूल के आर्किटेक्ट के तौर पे भी रॉबर्ट क्लाइव को याद करते हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रॉबर्ट क्लाइव, अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। और इंडिया से इसके ऊपर इंग्लैंड में करप्शन के चार्जेस भी लगे, मुकदमा भी चला, काफ़ी पैसा लेके गया था इंडिया से, लेकिन इंडिया का पैसा इसको रास नहीं आया। एंड ही हैड अ वेरी इंप्रेसिव कैरियर, बट ऑफ कोर्स एंडेड हिज लाइफ बाय कमिटिंग सुइसाइड। देन second person whose name is you can see in the list is Henry Vansittart. This man is not that much important. So next governor after Clive who can be important for us was Henry Vansittart. Now this person is important because during his time we have the Battle of Buxar. After Palasi, the Battle of Buxar in the year 1764 played very crucial role in establishing the British power in India. It is usually said that the verdicts of Palasi were confirmed by the Battle of Buxar. तो बैटल ऑफ प्लासी हैड बीन अ कंस्पिरेसी, और उस कंस्पिरेसी में वी कैन से कि डिफीट ऑफ नवाब वाज एक्सीडेंटल, उसकी आर्मी ने उसका साथ नहीं दिया था। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर ऐसा नहीं था, इट वाज अ हार्ड फाउट बैटल। बोथ द पार्टीज हैड बीन मेकिंग प्रिपरेशन फॉर दिस एंड विद द फुल नॉलेज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इसमें हम कह सकते हैं कि जो कुछ कंस्पिरेसी के तहत एक्वायर किया गया था उसकी परमानेंसी शायद नहीं हो सकती है, इसलिए कि फ्यूचर में मिलिट्री चैलेंज मिल सकता है आपको, आपकी पोजीशन कैन नॉट बी इरिवर्सिबल। लेकिन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द ब्रिटिश पोजीशन बिकेम इरिवर्सिबल इन बंगाल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था वेंसिटार्ट के टाइम पे। ये मेरे ख्याल से 1760 से 64 तक रहा था व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस। मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि आप इस तरह के बिल्कुल प्रिसाइज डेट्स याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर याद रखिए या अचीवमेंट्स याद रखिए। बस मैं इसको थोड़ा सा हिस्ट्री में
चूंकि डेट्स को लोग पसंद करते हैं इस वजह से मैं इसको शामिल कर रहा हूँ। बस ये याद रखिए कि हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, सो इट वाज हेनरी वेंसीटार्ट। नाउ बैटल ऑफ बक्सर चूंकि कॉन्टेक्स्ट वाइज आ गया है तो इसमें वी हैव अ ब्रिटिश जनरल हुज नेम इज हेक्टर मुनरो। ये बंगाल का ऑफिसर नहीं है, गवर्नर नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट हेक्टर मुनरो कॉन्टेक्स्ट वाइज। इसके नाम के साथ सर भी लगता है, सर हेक्टर मुनरो। सर एक इंग्लैंड में टाइटल था नाइटहुड से रिलेटेड। तो सर हेक्टर मुनरो ने एक अलायंस को डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ बक्सर, और उस अलायंस में आपको पता है 3 मेजर पावर्स थे। एक तो मीर कासिम बंगाल का, जिसको कि अंग्रेजों ने हटा दिया था बिकॉज ऑफ हिज efforts to reassert the position of the Nawab of Bengal. And after Mir Qasim, उसके बाद से मीर कासिम decided कि he will contest the position. तो मीर कासिम ने अवध के नवाब, जिसका नाम हम लोग पहले लिख चुके हैं, उससे बात की, वह उसके अलायंस में शामिल हुआ। और अवध के नवाब के दरबार में ही एट दैट टाइम मुगल एम्परर शाह आलम एक फ्यूजिटिव के तौर पे रह रहा था। शाह आलम सेकंड कह सकते हैं इसे। तो शाह आलम भाई भी शामिल हो गए इस लड़ाई में और तीनों हारे। सो दिस इंडियन अलायंस इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764 was defeated by the famous British commander Hector Munro, and we are talking about this battle in the context of the list of governors of Bengal because it was during the time of Henry Vansittart, who was the governor from 1760 to 64. This battle had taken place, and the historical significance of this battle is that this battle came to confirm the verdicts of Plassey. यानी कि इसके बाद अब ब्रिटिश पोजीशन को इंडिया से रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो ये दूसरा नाम था हमारी लिस्ट में हेनरी वेंसीटार्ट का। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एसोसिएटेड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इन गवर्नर्स की बायोग्राफी तो हमसे पूछी नहीं जाएगी। तो ये गवर्नर्स हमारे लिए, या गवर्नर्स जो बाद में आएंगे या ऑफिसर्स, ये हमारे लिए एक बहाना है, एक कॉन्टेक्स्ट है, जिसके जरिए हम लोग कुछ टॉपिक्स भी साथ साथ कवर कर लेंगे रिवीजन के तौर पे। अगले 2 नाम हमारे लिए बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, इतने इनसिग्निफिकेंट है कि मुझे उनकी स्पेलिंग भी नहीं याद आ रही। एक नाम है हैरी जैसे मन करे वैसे पढ़ लीजिए इसको, VERELST, वेरेल्स्ट। तो उन्होंने भी हमारे नाम बहुत बिगाड़े हैं, हम भी थोड़ा बहुत उनके नामों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। और एक और नाम है जॉन कार्टियर। So in the list of governors of Bengal, we have these 2 more names, जॉन कार्टियर। इन दोनों को हम इसलिए जानते हैं कि ये दोनों रहे थे उस समय जब बंगाल में डुअल गवर्नमेंट था। सो दे प्रिजाइडेड ओवर द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, जिसका पीरियड माना जाता है 1765 से लेकर 72 तक। इसमें जॉन कार्टियर को खास तौर से जाना जाता है इसलिए कि इसके ज़माने में कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन वाज फुल ऑफ करप्शन। कंपनी कुड नॉट assume responsibility despite exercising all the powers. Nawab of Bengal had responsibilities but had no power to discharge his duties. तो जो भी करप्शन था उस पर नवाब तो कंट्रोल कर नहीं सकता था और वो कर भी नहीं पाया। तो इस वजह से हुआ ये कि एक फेमिन आया। इस समय तक रेवेन्यू भी डबल हो चुका था, दैट वाज अराउंड 1770। और इस फेमिन की वजह से भी डुअल गवर्नमेंट की काफ़ी बदनामी हुई थी, इंग्लैंड में भी हुई थी, और सोचा जाने लगा था कि इसको ख़त्म किया जाए। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि हु वाज द गवर्नर, तो जॉन कार्टियर वाज द गवर्नर एट द टाइम ऑफ दिस फेमिन। और ये फेमिन हम लोग याद इसलिए रखते हैं कि इट इज़ बिलीव्ड कि इस फेमिन में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल डाइड। तो ब्रिटिश रूल का इनॉग्रेशन ही हुआ इतनी बड़ी ट्रेजिडी के साथ। और उस समय बंगाल में सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट था जो कि 1765 से 1772 तक चला था। डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये था
कि द ईस्ट इंडिया कंपनी with the Diwani rights received from the Mughal Emperor Shah Alam II as part of the treaties of Allahabad, and Nizamat right means everything except revenue vested in Bengal, but company not allowing the Bengal Nawab also to exercise his power through its influences. तो उस समय की सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, और उस जमाने में ये दो गवर्नर हमें दिखाई देते हैं. उसके बाद अगला जो गवर्नर बनता है वो रिमार्केबली नोट बहुत ही टैलेंटेड माना जाता है. एंड आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव ही कैन बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. बहुत दिनों से बंगाल में था. वारेन हेस्टिंग्स का नाम आपने सुना होगा. ही वॉज पार्ट ऑफ विलियम डेल रिम्पल का नाम आपने सुना होगा. उन्होंने किताब लिखी है वाइट मुगल्स. तो उस किताब में उन्होंने उन लोगों की बात की है जो कि अपने स्किन में तो अंग्रेज थे लेकिन अपने कल्चर में इंडियन हो चुके थे. दैट इज इंडियनाइज्ड ऑफिसर्स. तो ये अच्छा बंगाली बोलते थे, बंगाली ड्रेसेस, बंगाली डिशेस. और ये एक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है वारेन हेस्टिंग्स, जिनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है. यानी कि द पीपल हु डेवलप्ड अ सेंस ऑफ अटैचमेंट विद द ईस्ट. ओरिएंट का मतलब ही होता है ईस्टर्न. तो ये बहुत दिनों से इंडिया में था और he can be termed as white Mughal, one of the white Mughals. यानी कि white in skin but Mughal in culture. तो वारेन हेस्टिंग्स कह सकते हैं कि लास्ट गवर्नर था बंगाल का, और इस लास्ट गवर्नर को ऑर्डर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑर्डर दिया, और वजह था वही करप्शन, फेमीन एंड डुअल रूल का सिस्टम जो था वो काफ़ी बदनाम हो चुका था. तो इसको ऑर्डर दिया गया कि आप डुअल रूल को ख़त्म करें और बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी खुद संभालें. So we can say he was the last of governors who was also to become the first of the governor general. लेकिन गवर्नर की हैसियत से उसका जो मेजर काम था वो था assumption of the end of the dual rule. The year was 1772 and assumption of the direct responsibility. ये काम उसका सबसे पहला काम नोटिसेबल माना जा सकता है. तो लगे हाथ हमने ये भी देखा कि डुअल रूल की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की और उसे ख़त्म करने का काम वारेन हेस्टिंग्स ने किया. क्लाइव ने बंगाल में एक इनडायरेक्ट सिस्टम को डेवलप किया था और इस बंदे ने इनडायरेक्ट को डायरेक्ट किया, और इसके लिए इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इंस्ट्रक्शंस मिले. उसके बाद से वी हैव अ वेरी फेमस एक्ट जिसकी बात हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773. शॉर्ट में इसको एक्ट ऑफ 1773 लिख लें या पूरा ही लिख लेते हैं. इसके बाद हम लोगों ने कल देखा था कि वी हैव अ पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. सो ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और इस कैपेसिटी में उसके कुछ काम हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो हम कह सकते हैं कि ही वॉज द लास्ट ऑफ द गवर्नर्स ऑफ बंगाल who after passing of the act of 1773 became the first governor general of Bengal. गवर्नर के तौर पे उसका रोल डायरेक्ट एजम्पशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल है, और गवर्नर जनरल के तौर पे उसके बहुत सारे काम हैं. कुछ कामों की लिस्ट हम लोग देख सकते हैं. हालांकि बाद में इसका भी इंग्लैंड में इम्पीचमेंट हुआ था. तो कुछ काम अगर इसके हम लोग देखें तो ही इज़ द मैन हु इज़ एसोसिएटेड विथ व्हाट इज़ कॉल्ड द रोहिला वार्स. रोहिला की स्पेलिंग रोहिल्ला भी होती है. रुहेलखंड का नाम आपने सुना होगा. बस इतना जानिए कि रुहेला वार्स, ये वेस्टर्न यूपी का इलाका है हिमालयन फुटहिल्स में, और अवध के नवाब ने एक तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का या डिफेंसिव अलायंस जो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था उसका फ़ायदा उठा लिया था
और ब्रिटिश ट्रूप्स के हेल्प से उसने रोहिलखंड पर अटैक किया, वहाँ के रूलर को डिफीट किया और उस पर कब्जा कर लिया। तो दिस मैन इज एसोसिएटेड विद दिस। दिस मैन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। अगर पूछे कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के टाइम पर गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो यही था। और माना जाता है कि फर्स्ट मराठा वार का डेट है 1775, जबकि ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी, और 82 जबकि ट्रीटी ऑफ सालबाई के जरिए इसको खत्म कर दिया गया था। सो दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। इस समय गवर्नर जनरल यही था। इसके और बॉम्बे काउंसिल के बीच, इसके नहीं बल्कि इसके काउंसिल के बीच और बॉम्बे काउंसिल के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था। इसने बॉम्बे काउंसिल का साथ दिया था, यानी कि ही वाज इन फेवर ऑफ एन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी इन बंगाल, इन मराठा एरियाज। फिर इसी के टाइम में एक और वार चला था, उसको हम कह सकते हैं, हिज नेम इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1784 में ख़त्म होता है, जिसके दौरान टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती, हैदर अली की डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान नया नवाब बनता है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775-82, इसको हम कह सकते हैं कि ये 82 84। अब वार की बिना मतलब की डिटेल्स पैक करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानो कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। फिर इसका नाम जुड़ा हुआ है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट से। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स में वी हैव, जो कि सबसे पहला टास्क था दीवानी राइट को एज्यूम करने के बाद या डायरेक्टली एक्सरसाइज करने के बाद, वो है रेवेन्यू रिफॉर्म्स। रेवेन्यू कलेक्शन में क्या रिफॉर्म किया जाए। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो काम किया उसको कहते हैं रेवेन्यू फार्मिंग। तो अगर आपसे पूछे कि रेवेन्यू फार्मिंग का सहारा किसने लिया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने लिया था एज पार्ट ऑफ हिज रेवेन्यू रिफॉर्म्स। और रेवेन्यू फार्मिंग में वो उस सिस्टम को फॉलो किया जो कि मुगल सिस्टम के अंदर डेवलप हो गया था बिकॉज ऑफ सम क्राइसिस। उसको कहते हैं इजारादारी। इजारादारी का मतलब होता है कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट किसी और को बेच दें, आप किसी और को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें। तो वारेन हेस्टिंग्स का जो सिस्टम था, उस सिस्टम में साल भर के लिए, 3 साल के लिए और एक बार तो 5 साल के लिए भी रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट की नीलामी की गई, जिसको ऑक्शनिंग कहते हैं। और द सिस्टम इज नोन एज द सिस्टम ऑफ इजारादारी। इज दिस क्लियर? So as part of revenue administration, who is associated with revenue farming? Warren Hastings as the first Governor General of Bengal. इसमें कुछ और भी काम किए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करते वक्त उसने कुछ काम किए। आपने नाम सुना होगा सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत का। सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, इस तरह के कोर्ट इसने कलकत्ता में एस्टेब्लिश किए, जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थे। सदर दीवानी अदालत दीवानी मामलों में, दैट इज रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, जो और दूसरे मामले होते हैं। और सदर निजामत अदालत वाज फॉर क्रिमिनल जस्टिस। ये बस लैंडमार्क कीजिए, याद रखिए। फिर इसने इंडियन लॉज की स्टडी के लिए उर्दू पर्सियन की स्टडी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, एंड ही एस्टेब्लिश्ड अ मदरसा एट कलकत्ता, जो कि इसके ओरिएंटल इंटरप्राइज का हिस्सा भी माना जाता है। द ईयर वाज 1781 और मकसद था उर्दू पर्सियन अरबिक लैंग्वेज के लर्निंग को आगे बढ़ाना, जिससे कि इंडियन लॉज के बारे में ख़ास तौर से
क्रिमिनल लॉज के बारे में जानकारी ली जा सके। इतना कुछ काफ़ी है इसके बारे में। हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, तो हमें सबको देखना है, तो हम लोग बहुत की पॉइंट्स पर ही फोकस करेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के बाद अगला बंदा जो गवर्नर जनरल बनता है उसका नाम है कॉर्नवालिस। ये बड़ा मशहूर नाम है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये अमेरिका में ब्रिटिश ट्रूप्स को, रॉयल आर्मी को लीड कर रहा था, लेकिन अमेरिका से हार गया था तो इसको इंडिया में भेजा गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल, जैसा कि कल की क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसको कि वीटो का राइट मिला। पहले पर्सनल कैपेसिटी में मिला और फिर बाद में इसको वो राइट दिया गया, या गवर्नर जनरल को राइट मिला। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टू एक्सरसाइज, और बाकी मैं चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं, जैसे कन्फ्लिक्टिंग रिलेशन ऑफ वारेन हेस्टिंग्स विद हिज काउंसिल, वो हम लोग कल के एक्ट में देख चुके हैं, जब रेगुलेटिंग एक्ट की बात की थी हम लोगों ने, तो उसको यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट टू एक्सरसाइज, ये भी उसी तरह का पॉइंट है, लेकिन लिख लीजिए, फर्स्ट टू एक्सरसाइज वीटो और पावर टू ओवरराइड, ओवरराइडिंग पावर ऑन हिज काउंसिल। इसका एसोसिएशन उसके अलावा अगर देखा जाए तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार में है, जिसमें इसने टीपू सुल्तान के खिलाफ ट्रूप्स को खुद लीड किया था, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। और उसमें उसने टीपू को डिफीट दिया था, और एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको कहते हैं सेरिंगा पत्तम की ट्रीटी, और ये साइन हुआ था 1792 में, और जिसमें टीपू सुल्तान के लगभग आधे एरियाज को इसने ले लिया था। ये इसके पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद इस बंदे ने एक और काम किया था कि बंगाल में इसने एक सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। एक क्लास हम लोग लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स पे भी करेंगे, तो परमानेंट सेटलमेंट्स के डिटेल हम लोग वहाँ पे कर लेंगे। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट को सबसे पहले 1790 में लागू किया गया एज जमींदारी सेटलमेंट फॉर 10 ईयर्स, और फिर बाद में उसको 1793 में परमानेंट कर दिया गया। और इस सेटलमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है वो ये है कि ज़मींदार्स वर एक्सेप्टेड एज द लैंड ओनर्स। दैट मीन्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज क्रिएटेड इन इंडिया, which historically had not been the tradition. In India, we generally find overlapping claims on the land. So that was neglected, and for the simple reason that he wanted to create a class of loyal zamindars, और परमानेंट तौर पर जो अमाउंट लिया जाना था, नॉट द रेट, अमाउंट भी फिक्स कर दिया गया था, उससे कि इनकम काफ़ी रेगुलर तरीके पे होने वाली थी। व्हेन वी हैव द अर्ली डेज, जबकि रिसोर्सेज की काफ़ी ज़रूरत थी कंसोलिडेशन के लिए। तो हिज नेम इज़ एसोसिएटेड विद परमानेंट सेटलमेंट। इतना काफ़ी है हमारे लिए। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की बात हम लोग कभी करेंगे फिर आगे। फिर इसने एक कोड जारी किया जिसको कहते हैं कॉर्नवालिस कोड। 1793 में ही उसने कॉर्नवालिस कोड बनाया था, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है एक्सेप्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को इसने सेपरेट कर दिया, रूल ऑफ लॉ को इसने एक्सेप्ट किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ को एक्सेप्ट किया। हालांकि ये सब थियोरेटिकल पोजीशन थी, प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन कॉलोनियल रिजीम में थोड़ा सा मुश्किल था। तो सेपरेशन ऑफ पावर, कंसेप्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, कोड इन द ईयर 1793 नोन एज द कॉर्नवालिस कोड। अगला अचीवमेंट अगर हम देखें, इसका अगला काम जिसके लिए यह बंदा जाना जाता है, तो वी कैन टॉक अबाउट समथिंग, द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके डिटेल्स हम लोगों ने पिछली क्लास में किए हुए हैं, और माना जाता है कि ही वाज द फर्स्ट ऑफ द एंग्लिसिस्ट्स जिसने कि इंडियन कैरेक्टर पर, इंडियन
रेस के ऊपर बहुत ही पब्लिकली निगेटिव ओपिनियन एक्सप्रेस किए। इसके हिसाब से ऑल इंडियंस वर डिसऑनेस्ट और इस वजह से उनको कोई हायर पोस्ट नहीं दिया जा सकता। तो जो रेशियल प्रोविज़न था एक्ट ऑफ 1793 का, वो इसी के पर्सनल इन्फ्लुएंस में हुआ था और उस तरह की चीज़ कहीं ना कहीं कॉर्नवालिस कोड में भी रिफ्लेक्ट होती है। इसको कभी कभी इंडियन ब्यूरोक्रेसी का जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उसका फादर भी कहते हैं, इसलिए कि इसने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया, पुलिस को ऑर्गेनाइज किया और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में आज जो डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट है उसने क्रिएट किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उसके जुडिशियल पावर से अलग कर दिया। ये सब उसके कुछ काम है जिसकी वजह से उसको इंडियन ब्यूरोक्रेसी का फादर भी माना जाता है। इसके बाद जो अगला नाम है अगर आप लिस्ट में देखें तो वो है सर जॉन शोर का। इसके टाइम में कोई बहुत ज़्यादा शोर नहीं हुआ। हाँ, कॉर्नवालिस के ज़माने में ही वाज वन ऑफ द एसोसिएट ऑफ कॉर्नवालिस और कॉर्नवालिस के ज़माने में जो इसका रोल है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट and more profound than his role as the Governor General of Bengal. एक्चुअली इसी ने वो फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट की थी जिसको कहते हैं शोर्स मिनट। जब ये गवर्नर जनरल नहीं था, जब ये कॉर्नवालिस के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल था, जिसके बेसिस पर कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। तो लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि सर जॉन शोर, रेवेन्यू ऑफिसर अंडर कॉर्नवालिस हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ दिस परमानेंट सेटलमेंट, उसके जो भी फीचर्स हैं सर जॉन शोर के मिनट के बेसिस पर ही हुए। गवर्नर जनरल के तौर पे इसका जो भी पीरियड रहा 1793 से लेकर 98 तक, इसमें कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट नहीं होता है। हाँ, मराठे इस ज़माने में, लेकिन इसका सीधा रिलेशन इससे नहीं है, निज़ाम को डिफीट देते हैं, मराठों का पावर थोड़े समय के लिए थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसने बहुत ही इनएक्टिव पॉलिसी अपनाई और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कल देखा था हम लोगों ने कि जो पैसिफिस्ट प्रोविज़न था उसको इसने उसके स्पिरिट में मानने की कोशिश की, लेकिन यह पॉलिसी इसके बाद ही ख़त्म हो गई व्हेन इन 98 1798 लॉर्ड वेलेस्ली दिखाई देता है। सेवनटीन नाइन्टी एट से लेकर 1805 तक ये रहता है और इसके ज़माने में बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी हो जाती है। ये अपने आप को बंगाल टाइगर बोलता था और इसने जो सिस्टम शुरू किया इंडियन रूलर्स को डोमिनेट करने के लिए उसको कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। सो हिज नेम इज एसोसिएटेड विद सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम और इसी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को जब टीपू सुल्तान ने मानने से मना कर दिया था, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में हम सब जानते हैं कि टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल। फिर इसी के ज़माने में ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी 1802 में विथ मराठा पेशवा, जो अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से भाग के चला गया था कंपनी के पास, बाजीराव सेकंड। और ये ट्रीटी सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी थी जिसको अपोज किया मराठा सरदार ने, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी हैव द सेकेंड एंग्लो मराठा वार। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार किसके टाइम पर हुआ था? तो इट वाज द सेम पर्सन, वेलेस्ली। इसके एक और अचीवमेंट है, आपने नाम सुना होगा फोर्ट विलियम कॉलेज। आई होप स्पेलिंग इज करेक्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज को इसने एस्टेब्लिश किया था इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे कंपनी के, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और बाद में इस कॉलेज को शिफ्ट भी कर दिया गया था। इतना कुछ इसके बारे में काफ़ी है। ये चला गया और
इसको जाने के पीछे वजह ये थी कि नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड सम रेस्ट, मतलब कुछ पैसिफिज्म दिखाई देने लगा था। इसके वार की वजह से काफ़ी एक्सपेंडिचर हो गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कंसर्न थे, ब्रिटिश स्टेट्समैन और पॉलिटिशियंस भी कंसर्न थे। हालांकि इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था इस बात के लिए कि इसने परसिव्ड थ्रेट, नेपोलियन का जो थ्रेट था उसके अगेंस्ट इंडिया में ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसने इमीडिएटली तो किसी एंटी ब्रिटिश अलायंस को डेवलप नहीं होने दिया और लॉन्ग टर्म में ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर इसके बाद कॉर्नवालिस आता है थोड़े समय के लिए, लेकिन आता है बहुत कुछ करता नहीं है, उसकी इंडिया में ही डेथ हुई है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये कॉर्नवालिस जो कि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करता है, जिसने इंडिया आकर परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया, जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी का फादर भी माना जाता है, जिसका कोड बहुत सारे मॉडर्न प्रिंसिपल्स के लिए जाना जाता है, उसकी डेथ इंडिया में हुई। और मेरे ख्याल से उसका कब्र जो है वो गाज़ीपुर में है। गाज़ीपुर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न यूपी। उसके बाद से, कॉर्नवालिस के बाद से आता है लॉर्ड मिंटो। इसका कोई बहुत मेजर अचीवमेंट नहीं है, लेकिन 1809 में ही साइंड अ ट्रीटी विथ द रूलर ऑफ पंजाब, दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ अमृतसर, विथ रंजीत सिंह। रंजीत सिंह बहुत ही पावरफुल थे, उनकी आर्मी बहुत ही मॉडर्न थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि ही अडॉप्टेड कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड विद द ब्रिटिश, या मोर प्रैग्मेटिक एटीट्यूड। उनको पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली जीत ही जाएगी, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वह जस्ट बार्गेनिंग हिज टाइम। और तभी जब उन्होंने अलग अलग मिसल्स को जीतना शुरू किया, तो व्हेन ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग द मिसल्स ऑफ दिस एरिया, दैट इज सतलज, सिस सतलज एरिया, तो सिस सतलज एरिया के मिसल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचे और लॉर्ड मिंटो ने उन्हें बचाया। और रंजीत सिंह इस ट्रीटी में यह मान गए कि वह सतलज के ईस्ट की तरफ कोई मिलिट्री कैंपेन नहीं करेंगे। तो सतलज रिवर एक तरह से बॉर्डर बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी के एरियाज़ के बीच में और रंजीत सिंह के एरियाज़ के बीच में। यहाँ दो वर्ड का मतलब समझ लेंगे तो थोड़ी आसानी होगी। सपोज कीजिए कि एक नदी है और मैं नदी के इस पार खड़ा हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा तो नहीं हूँ लेकिन आप समझ लीजिए। तो मेरे लिए यह एरिया होगा सिस, अगर मैं अपने नज़र से देखूँ तो, और यह एरिया होगा ट्रांस। और अगर मान लीजिए कि ये आप हैं, आप इधर खड़े हैं, या मैं ही इधर चला जाऊं, तो मेरे लिए यह एरिया हो जाएगा ट्रांस और मेरे लिए यह एरिया होगा सिस, इस पार और उस पार। तो यहाँ सिस सतलज का मतलब था फ्रॉम द ब्रिटिश परस्पेक्टिव। ये है रंजीत सिंह, मतलब पंजाब, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के परस्पेक्टिव से सिस एरिया का मतलब हुआ सतलज के इस पार, यानी कि ईस्टर्न पार्ट। और रंजीत सिंह हैड बीन थ्रेटनिंग द एरियाज और मिसल्स इन दिस पार्ट। तो इस अमृतसर की ट्रीटी में यही मना कर दिया गया कि आप इधर नहीं आएंगे, आप उधर ही रहेंगे। तो एक तरह से रंजीत सिंह को भी राहत थी कि रंजीत सिंह अपना वेस्ट की तरफ एक्सपेंशन करते रहे, उनका ईस्ट की तरफ कोई लेना देना नहीं था। इज दिस क्लियर? मिनटों के बाद फिर से एक बार ब्रिटिश पॉलिसी अग्रेसिव होने जा रही होती है, व्हेन वी हैव लॉर्ड हेस्टिंग्स। यह इंडिया में रहता है 1813 से लेकर 1823 तक, और इसने जो प्राइमरी कोशिश की वह थी, उसको कहते हैं ब्रिटिश पैरा माउंटसी। ऑलरेडी सब्सिडरी अलायंस ने इंडियन पावर्स को डोमिनेट कर लिया था, और जो सिस्टम वेलेस्ली ने डेवलप किया था उस सिस्टम के बेसिस पर इसने ब्रिटिश पैरामाउंटसी को फॉर्मलाइज करने की कोशिश की। तो ही बिकेम द फर्स्ट ऑफ द गवर्नर्स जनरल ऑफ बंगाल हु विजिटेड द मुगल एम्पर विदाउट एनी ऑफिशियल सेरेमनी। फिर इसका नाम और भी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसका नाम जुड़ा हुआ है थर्ड एंग्लो,
मराठा वार, मराठास की फाइनल डिफीट इसी के टाइम पे हुई थी, जिसमें कि पेशवा को बिठूर भेज दिया गया था पेंशन देकर, जहां पेशवा के अडॉप्टेड सन नाना साहब ने बाद में रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था। और इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ पिंडारीज, तो उसको कंपेन अगेंस्ट पिंडारीज के लिए भी जाना जाता है। बल्कि उसका जो पिंडारीज जो कि मराठों के ट्रेडिशनल एलाई थे, उसके अगेंस्ट जो कैंपेन था, उसी की वजह से वो भी एक रीज़न बना था थर्ड एंग्लो मराठा वार में। इस आदमी ने हमें शिमला दिया, एक तरह से कह सकते हैं, जो हिल स्टेशन है। एंग्लो नेपाल वार होता है और एक ट्रीटी होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली और सुगौली। और कुछ हिल एरियाज नेपाल से लिए जाते हैं, जिसमें शिमला भी शामिल था। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली विथ नेपाल उसके नाम के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मराठास के एरिया को लेने में और नेपाल से कुछ एरियाज को लेने में, पिंडारीज को सप्रेस करने में, मुगल एम्परर की पोजीशन को अंडरमाइन करने में, और ब्रिटिश पॉलिसी को एक बार फिर से अग्रेसिव करने में इसका नाम लिया जा सकता है। जब ये 1783 में 1823 में 1783 नहीं, जब ये चला गया था, तो थोड़े समय के लिए मैंने कहा था कि इस लिस्ट में हम कभी कभी एक्टिंग गवर्नर्स को इंक्लूड करेंगे जब वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम किए होंगे। तो जॉन एडम नाम का एक आदमी थोड़े समय के लिए एक्टिंग गवर्नर बना। यहाँ एक्टिंग गवर्नर ऑफ कोर्स एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसका काम इसलिए मशहूर है कि इसने प्रेस की लिबर्टी को सप्रेस करने की कोशिश की, और उसने एक एक्ट पास किया जिसको कहते हैं एडम्स प्रेस एक्ट। वैसे तो और भी वर्ड और भी एक्ट्स के लिए ये नाम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको कहते हैं गैगिंग एक्ट, जिससे कि प्रेस के फ्रीडम को सप्रेस किया जाना था। इसको पास किया गया था 1823 में। उस समय तक प्रेस का डेवलपमेंट होने लगा था, और हमारे प्रोग्रेसिव इंडियंस में से एक थे राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन राय इस समय कुछ न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। एक न्यूज़पेपर वो फारसी में पब्लिश करते थे जिसका नाम था मिरातुल अखबार। तो मिरातुल अखबार के खिलाफ एक्शन लिया गया था, जो कि राजा राम मोहन राय पब्लिश करते थे, और ये एक्शन जॉन एडम्स के प्रेस एक्ट के तहत लिया गया था। इसके लिए यह आदमी जाना जाता है। इसके अलावा इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। फिर अगला नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है लॉर्ड एमहर्स्ट का। ये 1823 से 28 तक गवर्नर रहता है, और इसका पीरियड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार, एक ट्रीटी हुई थी जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ यानडाबो। एक बार चेक कर लेना आप लोग गूगल पे स्पेलिंग वगैरह, ट्रीटी ऑफ यानडाबो। और ट्रीटी ऑफ यानडाबो में उसने कुछ इलाके ले लिए थे, जैसे अगर शिमला का या उत्तराखंड के थोड़े से इलाके नेपाल से लिए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, तो असम को, मणिपुर को और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों को ब्रिटिश एम्पायर में इसने शामिल किया एज पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ यानडाबो, और वो इलाके बर्मा से लिए गए थे। इसको फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार भी कहते हैं, और फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में। लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद जो गवर्नर जनरल आता है, उसका टाइम हमारे लिए रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। नाम से ही आपको पता लग जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका पीरियड 1828 से लेकर 35 तक का माना जाता है, 35-36 तक का। एक दो साल इधर उधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया में बहुत सारे कामों के लिए जाना जाता है। एक तो यह है कि इसके टाइम पर पास हुआ चार्टर एक्ट 1833, और हम लोग नोट कर चुके हैं कि ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। So in the series of governors general of India, the first name is Lord William Bentinck, and in the series of governors general of Bengal, the last name is the name of Lord William Bentinck.
तो उधर से लास्ट, इधर से पहला, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके कामों की एक लंबी लिस्ट है। इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, बाद के नेशनल लीडर्स ने भी अप्रिशिएट किया। कुछ इसके काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। एटीन 35, और ये किया इसने मैकॉले के मिनट के बेसिस पर। मैकॉले एक बहुत ही फेमस एंग्लिसिस्ट है, जो वायसराय की काउंसिल का पहला मेंबर भी था, लॉ मेंबर। इसके बारे में हम लोगों ने 1833 के एक्ट की बात करते समय कल की थी। ही वॉज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। तो उसने एक मिनट प्रेजेंट किया। उस मिनट में उसने इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम को, और मॉडर्न एजुकेशन एज डेवलप्ड इन द वेस्ट को सपोर्ट किया, और विलियम बेंटिक ने उसको एक्सेप्ट किया। तो इसको हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के लिए जान सकते हैं। इसको हम लोग इस बात के लिए भी जान सकते हैं कि पर्सियन वाज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद ही पर्सियन इलीट की सरकारी नौकरियों में जो लोग पर्सियन जानते थे, रीच काफ़ी कम होने लगी, और अब इंग्लिश जानना जरूरी हो गया था। उसी तरह से इसी के टाइम में मुगल एम्परर का नाम भी क्वाइन से ड्रॉप कर दिया गया था। द नेम ऑफ द मुगल एम्परर ड्रॉप्ड फ्रॉम द क्वाइन। नेम ऑफ द मुगल एम्परर रिमूव्ड फ्रॉम द क्वाइंस, ब्रिटिश क्वाइंस, जो कि ब्रिटिश पैरामाउंटेसी के डायरेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा सकता है। और भी काम इसके हैं जिसको नोट कर सकते हैं हम लोग, जैसे इसने मैसूर को, कछार को, जैंतिया को और कुर्ग को, ये 4 इंडियन एस्टेट्स को इसने अनेक्स कर लिया था। मैसूर को बाद में तो रिस्टोर कर दिया गया था। तो एनेक्सेशन में इसका ये रोल है। प्लस एक रोल जो कि बहुत ही मशहूर है, कि उसने 1829 में सती को प्रोहिबिट किया था, जिसके लिए राजा राम मोहन राय जैसे प्रोग्रेसिव इंडियंस ने उसका साथ दिया था। और इस मेजर को अपोज करने वालों में वी हैव अ रिएक्शनरी लीडर ऑफ बंगाल एट दैट टाइम, पंडित राधा कांता देव एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन धर्म सभा ने इसका अपोज किया था। पॉपुलर मेमोरी में ये आज भी, जैसे ही सती की बात होती है, सती के एवोल्यूशन की बात होती है, तो हिस्ट्री से थोड़ी सी भी जिसका एक्सपोजर है, उसके दिमाग में इसका नाम आता है। इसने ठगी को भी सप्रेस किया था। ये भी एक इंटरेस्टिंग रिचुअल किलिंग वाला प्रैक्टिस था सेंट्रल इंडिया के कुछ इलाकों में, जहाँ कुछ लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लूटिंग और किलिंग का काम करते थे। उनको ठग कहते थे। तो ठुगी, THU, अंग्रेजों ने इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी ख़राब कर दी है। ठुगी ऐसे कुछ लिखते हैं, ठगी है बेसिकली। हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं कि ठगी के प्रैक्टिस को किसने रोका था, तो विलियम बेंटिक ने। फिर सिस्टम ऑफ, हमारे यहाँ ये भी था, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, उसको भी रोकने में इसका नाम याद किया जाता है। फिर इसके जाने के बाद लॉर्ड ऑकलैंड आए, ये अगला नाम है। लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम आमतौर पे मान सकते हैं कि बेंटिक लेफ्ट इन 36 से 42। इनका कोई काम नहीं है। अफगान डिजास्टर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, जो कि एक तरह से डिजास्टर था ब्रिटिश के लिए, पूरी आर्मी इन्होंने डिस्ट्रॉय करा दी। अब बदला लेने का काम अगले गवर्नर जनरल ने किया, जिसका नाम था लॉर्ड एलन बरो। बहुत दिनों तक तो नहीं रहा, 42 से मेरे ख्याल से 46 तक रहा था वो। 42 से 44 तक ही रहा था।
और इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट काम हैं। एक तो एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, जो कि पूरे ब्रिटिश एम्पायर में किया गया था 1843। इसी के बाद से इंडेंचर्ड लेबर की शुरुआत होती है। जब स्लेवरी एबॉलिश कर दी गई तो लेबर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि जो इंडिया के लेबर इंटेंसिव एरियाज थे, ईस्टर्न यूपी बिहार, यहाँ के लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बाहर भेजा गया, जिनके डिसेंडेंट्स आज हमारे डायस्पोरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनको 5 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा जाता था। उसके बाद से फिर इनको आज़ादी होती थी। ये चाहे तो इंडिया वापस आ सकते हैं और ये चाहे तो वहीं पर रह सकते हैं। कुछ लोगों ने वहीं पर रहना शुरू किया और आज जो बाहर बहुत बड़ा एक सेक्शन है इंडियंस का, जो इंडियन डायस्पोरा के तौर पे इंडिया आते रहते हैं कभी कभी, वो इन्हीं लोगों के डिसेंडेंट्स हैं। सो दिस डेवलपमेंट इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, दैट इज़ एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। और दूसरा काम इसने किया, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। ये भी उसी साल किया 1843 में। एनेक्सेशन ऑफ सिंध में माना जाता है कि ब्रिटिश पोजीशन काफ़ी ड्यूबियस थी। सिंध के अमीर हमेशा से फ्रेंडली रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एनेक्स किया गया। तो ये पॉलिटिकल रीजन की वजह से था। अफगानिस्तान पे कंट्रोल करना था, पंजाब पे करना था, तो सिंध के ऊपर इनका कंट्रोल होना जरूरी था। और इस समय तक आते आते ब्रिटिश पॉलिसी में मॉरलिटी जैसी कोई चीज़ रह नहीं गई थी। ये नाम है उस ऑफिसर का जिस ऑफिसर ने सिंध के एनेक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इसका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि वी हैव नो राइट टू सीज सिंध येट वी शैल डू सो। कौन सी बात है भाई, जब तुम्हें राइट नहीं है तो तुम करोगे क्यों? तो खुद कहता है कि दिस वुड बी वेरी एडवांटेजियस, यूजफुल एंड ह्यूमन पीस ऑफ rascality. So he is admitting this is a piece of rascality, but what kind of rascality? Advantageous and human piece of rascality. तो एडवांटेजियस एंड ह्यूमन तो समझ में आता है, डेट वाज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ह्यूमन इसलिए था कि इस समय तक आते आते ये कहा जाने लगा था कि इंडियन रूलर्स आर डेस्पोटिक रूलर्स। वो अपने सब्जेक्ट्स की भलाई के लिए काम नहीं करते हैं, और अगर उनको इंडियन सब्जेक्ट्स का भला करना है तो दे मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द इनलाइटेंड रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस समय तक एक सुपीरियर मोरल पोजीशन को क्लेम किया जाने लगा था पॉलिटिकल फील्ड में भी, और इंडियन रूलर्स वर सपोज टू बी और केम टू बी परसिव्ड एज ओरिएंटल डेस्पॉट्स, जिन्होंने डेस्पोटिज्म के तहत जो भी पावर उनके हाथ में रहा उस पावर का इस्तेमाल उन्होंने अपने भले के लिए किया, अपने लोगों के भले के लिए नहीं किया। दैट्स वाई चार्ल्स नेपियर इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट कि वी हैव नो राइट टू सीज सिंध येट वी शैल डू सो, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल and human useful advantageous and human piece of rascality. तो चार्ल्स नेपियर के नाम भी लगे हाथ आप याद रखेंगे। हिज नेम इज एसोसिएटेड विद एनेक्सेशन ऑफ सिंध, एंड हिज नेम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर displaying the British attitude towards the Indian states by this time. लॉर्ड एलनबरो के बाद जो अगला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। स्पेलिंग चाहे तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। 1844 से लेकर 48 तक ये गवर्नर जनरल रहा। और इसके टाइम में जो सबसे रिमार्केबल डेवलपमेंट हमारे लिए हो रहा है वो है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर। एक तरह से पंजाब के ऊपर इनडायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश हो जाता है, और पंजाब में दिलीप सिंह को रूलर मानते हुए उसकी माँ रानी जिंदन को उसका रीजेंट मान लिया जाता है। लेकिन फिर पंजाब में रिवोल्ट होता है, और जब डलहौजी आएगा तो उसको अनेक्स कर लेगा उस रिवोल्ट का बहाना बनाकर। तो लॉर्ड हार्डिंग का नाम आपको इसके लिए याद रखना है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसके बाद से आता है लॉर्ड डलहौजी, और ये नाम तो घर घर सुना हुआ नाम है। ब्रिटिश जो भी गवर्नर्स थे, गवर्नर जनरल्स थे, तो उनके लिस्ट में इसका नाम बहुत ही इंप्रेसिव माना जाता है। यहाँ तक यूपीएससी ने मेन एग्जामिनेशन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको माना जाता है कि ही वॉज वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्निटी इंडिया में जो आई उसका सिर्फ नेशनलिज्म से नहीं बल्कि कॉलोनियल रिजिम से भी कुछ ना कुछ रिलेशन था। सबसे पहले तो कहा जाता है कि ही क्रिएटेड द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया बाय एनेक्सेशंस।
बहुत सारे एनेक्सेशंस किए, और एनेक्सेशंस के लिए इसने वार का सहारा लिया। उसके बेसिस पर इसने सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद पंजाब को एनेक्स कर लिया 1849 में, और इसी समय रानी जिंदन से कोहिनूर डायमंड भी अंग्रेज लेके चले गए थे। फिर इसके बाद से इसने माल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल के नाम पर वही ओरिएंटल डेस्पोटिज्म वाली बात को ध्यान में रखते हुए अवध को एनेक्स कर लिया। दैट वाज 1856, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा। फिर अगर इसके रोल को देखें तो इसने चार्ल्स वुड के डिस्पैच को इंप्लीमेंट किया, जो कि इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहलाता है 1854 में, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। उसके डिटेल्स तो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। फिर इसका नाम जुड़ा हुआ है रेलवेज, उसका भी पायनियर माना जाता है। पहली रेल लाइन 1853 में चली। टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, एक तरह से इंडिया को इसने इस तरह की चीज़ों से कनेक्ट किया। फिर इसका नाम एक और डॉक्ट्रिन के साथ, जो खास तौर से एनेक्सेशन के साथ जुड़ा हुआ है, सीक्वेंस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पहले आना था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और सतारा का स्टेट जो कि अंग्रेजों ने थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद क्रिएट किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पहला विक्टिम बनता है। डलहौजी को और किसके लिए जाना जा सकता है, तो ही कैन बी नोन फॉर विडो रीमैरेज एक्ट। इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनका रोल इस एक्ट को पास कराने में वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे राजा राम मोहन राय का रोल माना जाता है सती के एबॉलिशन में। और फिर इसने एक और एक्ट पास करवाया था थोड़ा सा पहले, जिसको कहते हैं लेक्स लोकी एक्ट। उसका ईयर 1850 है, और इसने उस एक्ट के तहत, दिस वाज एन इनेबलिंग एक्ट विच इनेबल्ड इवन अ रिलीजियस कन्वर्ट टू इनहेरिट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। हमारे यहाँ जो सिस्टम था वो सिस्टम था कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर चाहिए तो आपको एंसेस्ट्रल रिलीजन भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस एक्ट के तहत एक्चुअली माना गया कि ये क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का एक तरीका था, और उसके लिए इसने एक तरह से इम्पावर किया रिलीजियस कन्वर्ट्स को, इनेबल किया कि वो अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को नहीं खोएंगे अगर वो कन्वर्ट भी कर जाते हैं तो। इतने कामों के लिए इसे जाना जा सकता है। फिर अगला नाम है लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग का टाइम आमतौर पे मान सकते हैं 1856 से लेकर 62 तक, और इसी के टाइम में हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसी के टाइम में वी हैव द एक्ट ऑफ 1858, जिसमें कि पावर को, जिसके बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को शिफ्ट कर दिया गया था। पावर शिफ्टेड फ्रॉम कंपनी टू द क्राउन। और इसके टाइम में अगर और डेवलपमेंट्स की बात करें तो 3 यूनिवर्सिटीज़ जो इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स, ये चार्ल्स वुड्स के डिस्पैच में इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ की बात कही गई थी, ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटीज़। तो इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ ये हो गई 3, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। और चार्ल्स वुड्स के डिस्पैच के तहत इनका अरेंजमेंट था, और इनका फाउंडेशन हुआ था लॉर्ड कैनिंग के ज़माने में। 1857 के रिवोल्ट को दबाने में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा। फिर इसने क्वीन विक्टोरिया के इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन को पढ़ा था 1858 में, जिसमें कि इलाहाबाद नवंबर के महीने में, शायद अभी रिवोल्ट चल ही रहा था, जिसमें कुछ पॉलिसी डिक्लेरेशंस किए गए थे कि अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को नहीं माना जाएगा, इंडियन रूलर्स के मामले में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, इंडियन रूलर्स आर ब्रेक वाटर्स इन दी स्टॉर्म। कुछ रूलर्स को
थैंक भी बोला गया था स्पेशली, और ये कि अब कल्चरल इंटरफेरेंस की पॉलिसी हम नहीं फॉलो करेंगे, अब हम एनेक्सेशन की पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे, इस तरह के कुछ डिक्लेरेशंस हुए थे इलाहाबाद में। लेकिन साथ साथ यह भी कहा गया था कि इंडियन स्टेट्स आर अंडर ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, दैट इज अंडर द पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, दैट वाज अनइक्विवोकल। आप ठीक है, आप रहिए, अपना काम कीजिए, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन पैरामाउंटेसी जहां तक है वो ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटेसी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद रिवोल्ट के बाद जो भी रिकंस्ट्रक्शंस होते हैं या जो ब्रिटिश प्लान होता है ब्रिटिश राज के रिवाइवल का या कंसोलिडेशन का, तो उसमें एक एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, दैट वाज पास्ड इन 1861 63, दैट वाज इन 1863, इंडियन काउंसिल्स रिफॉर्म एक्ट, जिसकी बात हम लोगों ने कल की थी। तो ये जब पास हुआ तब तक वो जा चुका था। इस समय लॉर्ड एल्गिन थे, जो कि बड़े कम समय तक रहे, 1862 टू 64 कह सकते हैं। इंडिया में ही डेथ हो गई थी शायद इनकी, धर्मशाला में, लेकिन इनके समय में इंडियन काउंसिल्स रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था। इसके डिटेल्स कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। लॉर्ड एल्गिन के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं लॉर्ड लॉरेंस। लॉरेंस ब्रदर्स में से एक थे ये, जॉन लॉरेंस एंड हेनरी लॉरेंस, बड़े एक्सपर्ट्स माने जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। 1857 में लॉर्ड लॉरेंस या सर जॉन लॉरेंस, इनका जो पूरा नाम था, सर जॉन ही लिख लीजिए, सर जॉन लॉरेंस, तो पंजाब में इन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया था और पंजाब में रिवोल्ट को स्प्रेड नहीं होने दिया था, बल्कि दिल्ली को रिकनकर करने का काम पंजाब के रिसोर्सेज के बेसिस पर ही हुआ। एंड उस उन रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में दिस पर्सन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनका टाइम हम मान सकते हैं 64 टू 69। एक वर्ड यूज होता है मास्टरली इन एक्टिविटी, इसके साथ अगर कोई नाम जुड़ा कभी आपको पूछे तो वो इन्हीं का नाम होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि ही डिड नॉट फॉलो एन अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी टुवार्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरियाज, पार्टिकुलरली टुवार्ड्स अफगानिस्तान। और इसकी पॉलिसी थी कि रसा का जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है अफगानिस्तान में, पर्सिया में, उस पर वॉच तो रखना है, लेकिन अभी एक्टिवली कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, उसको रिवर्स करने की या कोई प्रो एक्टिव अप्रोच फॉलो नहीं करना है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दैट इज कॉल्ड मास्टरली इन एक्टिविटी। इन एक्टिविटी, बट व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी? मास्टरली इन एक्टिविटी। बस इस नाम के साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ ये नाम जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद के गवर्नर्स, अब यहाँ से वायसराय की शुरुआत हो जाती है, कैनिंग से वायसराय। कैनिंग को ये मैं नहीं बता पाया, हालांकि पहले हम लोगों ने डिस्कशन में बात कर ली है इसकी, जब हम लोग पूरे नाम्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि ही वाज फर्स्ट ऑफ द वाइस रॉयज एंड लास्ट ऑफ द गवर्नर्स जनरल ऑफ इंडिया। तो कैनिंग के बाद अब जो भी आ रहे हैं ये गवर्नर, गवर्नर जनरल तो हैं ही एज हेड ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाइस राय भी हैं। तो लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस के बाद अगला नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नॉर्थ ब्रुक का। 1869 टू 74 मान सकते हैं इनका समय। कोई बहुत रिमार्केबल डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इसने फेमीन जो कि बिहार में आया था, इसको बहुत ही स्मार्टली टैकल किया, जो कि इसका सक्सेसर लॉर्ड लिटन, जिसका टाइम माना जाता है 1874 से 80 तक का, या थोड़ा बाद तक का, 80 तक तो था, 1880 तक तो था, 74 75 में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, फेमिन को लेकर इन दोनों का पर्सपेक्टिव अलग था। इसने बिहार के फेमिन को काफ़ी अच्छे से टैकल किया। लेकिन लॉर्ड लिटन जो इसके बाद आया, और अगला नाम वही है, 1874 टू 80 हम इसके पीरियड को मान सकते हैं। इसने इंडिया के एक बहुत बड़े इलाके में फेमिन होने के बावजूद भी कुछ बड़े खुराफाती काम किए, और कांग्रेस के फाउंडेशन
से रिलेटेड डिसकंटेंट को क्रिएट करने में इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे इसने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया 1877 में दिल्ली में, जिसमें महारानी विक्टोरिया वाज डिक्लेयर्ड एज क्वीन एम्प्रेस, और ये सब किया गया तब जबकि इंडिया का एक बहुत बड़ा इलाका फेमिन से परेशान था। जो भी पैसा इसमें लगाया गया फेमिन रिलीफ में लगाया जा सकता था। इसके लिए नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ने इनको क्रिटिसाइज किया, तो ही केम अप विथ समथिंग यू मे हैव हर्ड ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 है शायद ये। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए था कि सिर्फ वर्नाकुलर पेपर्स पे ही था। एक तरह से ये प्री सेंसरशिप था। अगर आप वायलेट करते हैं इसके प्रोविजंस को तो लाइसेंस कैंसिल होगा, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली जाएगी। प्लस इसका सबसे वर्स्ट एस्पेक्ट था कि देयर वाज नो जुडिशियल रेमेडी, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हुआ था कि एक पत्रिका न्यूज़पेपर था जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। उस पत्रिका ने अपने आप को रातों रात वर्नाकुलर से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया था, जिससे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचाया जा सके। फिर इसका नाम जाना जाता है इंडियन आर्म्स एक्ट के लिए। स्पेशल ईयर लिखना जरूरी नहीं है। इंडियन आर्म्स एक्ट में इंडियंस को वेपन रखने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया गया। लेकिन इसका सबसे कंट्रोवर्शियल काम था कि सिविल सर्विसेज में जो एज था अपीयरेंस का मैक्सिमम एज, उसको उसने 21 से घटाकर 19 कर दिया। एज, मैक्सिमम एज फॉर अपीयरेंस इन CS सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, उस समय ICS कहलाता था ये। अब आप अंदाजा लगाओ कि अगर 18 साल में 19 साल अगर मैक्सिमम एज हो तो कितने इंडियंस ट्रूली इस बात से फ़ायदा उठा पाएंगे कि अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं वो एग्ज़ाम के बेसिस पर हो रहे हैं। एग्ज़ाम लंदन में होता था, वैसे भी परेशानी थी जाने में, सिलेबस क्लासिकल लर्निंग के ऊपर बेस्ड था। तो ले देकर एज को लेकर जो भी रिलैक्सेशन था इसने जब ख़त्म किया, तो उस समय एक नेशनलिस्ट लीडर हैं जिनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने खुद ही 2 बार क्वालिफाई किया था लेकिन उनको नौकरी नहीं दी गई थी, किसी न किसी ग्राउंड पर हटा दिया गया था। उन्होंने एक ऑल इंडिया कैंपेन खोला, मतलब छेड़ा था। ही स्टार्टेड एन ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट दिस मेजर टेकन बाय लॉर्ड लिटन। लेकिन ये तो बस एक प्रोवोकेशन था, सिविल सर्विसेज को लेकर और भी प्रॉब्लम्स थी। तो अगर आपसे पूछे कि पहला लीडर जिसने ऑल इंडिया कैंपेन छेड़ा किसी मुद्दे को लेकर, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और पहला ऑर्गेनाइजेशन पूछे पॉलिटिकल, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंडियन एसोसिएशन। और अगर पहला मुद्दा है तो रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विसेज। और लिटन का नाम हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि उसने इस मूवमेंट को प्रोवोक किया, और इससे जो डिसकंटेंट पैदा हुआ, इसके और भी दूसरे हरकतों से माना जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन में इसका बहुत बड़ा रोल रहा। लिटन के बाद जख्मों पे मरहम रखने के लिए कुछ लोग मानते हैं कि देयर वाज अ लिबरल वायसराय लॉर्ड रिपन, 1780 टू 84 मान सकते हैं इसका पीरियड। लॉर्ड रिपन के ज़माने में बहुत सारे काम हुए। इसको हालांकि इससे पहले एक वायसराय शायद हम लोग मिस कर गए हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि मिस कर गए, इसलिए कि इन दोनों को एक साथ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मेयो का टाइम 1869 से सर जॉन लॉरेंस के बाद 72 तक चलता है, जिसमें कि मैंने शायद किसी और का नाम लिखवा दिया था। सीरीज में आप देखेंगे कि लॉर्ड मेयो आपको मिल जाएंगे। इन दोनों को दो दो कामों के लिए जाना जाता है। एक तो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, शुरुआत करी लॉर्ड मेयो ने और उसका फाइनल रूप इसने दिया। इसको भी फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, यानी कि प्रोविंसेस को पावर दिए गए, फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब ये दोनों माने की शुरुआत यहाँ हुई, क्लाइमेक्स यहाँ रहा। इन दोनों को एक साथ करना ही बेहतर है। दैट इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज काइंड ऑफ थिंग। वहाँ भूल गए लेकिन यहाँ पे करना ज़्यादा रेलिवेंट है। डेट एक बार कंफर्म कर लेना आप। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन फादर उसका ये कहलाता है। यहाँ शुरुआत होती है, यहाँ पे क्लाइमेक्स है।
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इन दो मामलों में इन दो वायस राज को इंडियन पब्लिक ओपिनियन उस समय काफ़ी रेस्पेक्ट की नज़र से देखता था, और लॉर्ड रिपन को तो बंगाली इंटेलिजेंसिया एक लिबरल लीडर के रूप में मानती थी, और उसकी इमेज इसलिए भी बढ़ी कि उसके ज़माने में कुछ और भी काम हुए। जैसे एक उसने एजुकेशन पे कमीशन बनाया जिसको हंटर कमीशन कहते हैं, हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, जिसने मास एजुकेशन की बात की। प्लस इसी के ज़माने में वी हैव समथिंग दैट इज़ नोन एज एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। जॉन एल्बर्ट इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, एंड ही मेड अ प्रपोजल टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियन जजेस। ऐसा माना गया कि अब उन केसेस में भी जिसमें यूरोपियन कल्प्रिट्स होते हैं, इंडियन जजेस को पावर होगा। लेकिन यूरोपियन कम्युनिटी ने इतना यूनाइटेड प्रोटेस्ट किया और इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि एक्ट तो फिर भी पास हुआ, लेकिन इसके प्रोविजंस को वाटर डाउन कर दिया गया। एंड वी हैव अ सिचुएशन की ऑफ कोर्स इंडियन कैन ट्राई द केसेस, लेकिन जो जूरी होगी उसमें मेजोरिटी यूरोपियंस की होगी। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से इंडियन लीडर्स ने दो तीन चीज़ें सीखी। एक तो मॉडर्न पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट सीखा, और दूसरा हॉलोनेस ऑफ द ब्रिटिश लिबरल प्रिटेंशंस वर ऑल्सो एक्सपोज्ड। कि ये लोग बस लिबरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन अगर लिबरल राइट्स कंसीड किए जाते हैं तो ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन उसके अगेंस्ट चला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी लॉर्ड रिपन के ज़माने में होती है। लॉर्ड रिपन के बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन। इनका टाइम माना जाता है कि फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बस इनको इसके लिए जानिए, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, जिसको शुरू में तो ये थोड़ा वेलकम करते हैं, दावत वगैरह दे के खिलाते पिलाते हैं, लेकिन बाद में ये कांग्रेस के नेताओं को गालियां तक देना शुरू कर देते हैं। और इनका एक स्टेटमेंट है कि कांग्रेस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी एंड इट्स लीडर्स रिप्रेजेंट नन बट देमसेल्व्स। तो लॉर्ड डफरिन, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लॉर्ड डफरिन के बाद जो गवर्नर आते हैं, कोई खास रोल उनका नहीं है, उनका नाम है लॉर्ड लैंसडाउन। इनका नाम पे एक जगह भी है, लैंसडाउन एक हिल स्टेशन है, जैसे डलहौजी भी एक हिल स्टेशन है। तो इनके ज़माने में दो काम होते हैं, एक तो 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल, और दूसरा 1892 में रिफॉर्म एक्ट, जिसके बारे में कल बात की थी हम लोगों ने। 1892 इनका टोटल पीरियड आप मान सकते हैं कि ही वाज फ्रॉम, अब एग्जैक्ट ईयर आफ्टर डफरिन 84, 4 ईयर्स, यहाँ तक आते आते लगभग 4 ईयर्स पे आने लगते हैं। हाँ, सो 1888 टू, सॉरी इतने 8 लिख दिए मैंने, हाँ ठीक तो था, 1888 टू 1893 ही मान लो, 92 93, एग्जैक्ट ईयर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सीक्वेंस याद रखना। तो एज ऑफ कंसेंट बिल और रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1892, ये दोनों लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में पास किए गए। क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल इस रिफॉर्म एक्ट का 1892 का, ये हम लोग कल देख चुके हैं। फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन टू। लॉर्ड एल्गिन टू, क्या कोई दिक्कत है? ओके। लॉर्ड एल्गिन टू के ज़माने में कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है, ये 98 तक रहते हैं, 1898 तक, मतलब 90, 1893 94 से 98 तक। ये डेट से एक बार कंफर्म कर लेना। वैसे क्यों करोगे, ज़रूरत है नहीं, इस तरह से यूपीएससी स्पेसिफिक डेट्स पूछती नहीं है, तो मैं भी याद नहीं करता हूँ, तुम भी छोड़ सकते हो आराम से। ये तो तुम्हारी क्लास के लिए मैंने बहुत मुश्किल से रात भर रट्टा मारा है, ताकि पब्लिक सेंटिमेंट को खुश रखा जा सके। वैसे एक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, स्पेसिफिक ईयर्स कब कौन कितने साल रहा, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये एडिशनल बर्डन होगा, आप चाहो तो सबको छोड़ सकते हो, किसी का डेट याद रखने की जरूरत नहीं।
पुणे में, महाराष्ट्र के इलाके में फेमीन था और इन्हीं के समय में चापेकर ब्रदर्स ने पुणे के प्लेग ऑफिसर्स को मार दिया था, जिनको कि पहला रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी या रिवोल्यूशनरी असैसिनेशन माना जाता है, जिसके लिए तिलक को प्रोसिक्यूट भी किया गया था। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है यह टाइम 1898 से लेकर 1905 तक, और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस समय ये नाम आपने सुन रखा होगा, लॉर्ड कर्जन। अच्छा हुआ इसका स्पेलिंग भूल रहा हूँ मैं। ये वाइट सुप्रीमेसी में यकीन रखता था, इसको लगता था कि सिर्फ इंडियंस ही सच बोलते हैं, मतलब सब वेस्टर्नर्स ही सच बोलते हैं। इंडिया में ट्रुथ को वो वैलिडिटी नहीं मिली है, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी के नाम पे दिस पर्सन इज नोन फॉर सो मेनी थिंग्स। एक तो कलकत्ता में इसने म्यूनिसिपल एक्ट पास किया और उसके जरिए जो वहाँ के लोकल बॉडीज़ थी उसमें इलेक्टेड एलिमेंट्स के रोल को कम कर दिया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया, जिसके तहत उसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी पर गवर्नमेंट कंट्रोल को बढ़ाया। पुलिस एक्ट पास किया, कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे उसने इंडियन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उसने रिवाइव किया। पूसा में एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट खोला। लेकिन उसके इन सारे कामों पे पानी तब फिर गया व्हेन वी हैव समथिंग दैट इज नोन एज द पार्टीशन ऑफ बंगाल in the name of administrative convenience. That was the year 1905, जिसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ, जिसको कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। इसलिए कर्जन के बारे में आता है कि उसने अपने कामों से इंडियन नेशनलिज्म को एक नई डायरेक्शन दे दी। स्वदेशी मूवमेंट पहला मूवमेंट था जिसमें कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया था, ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था। इतना लॉर्ड कर्जन के बारे में। फिर लॉर्ड कर्जन के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो चलते हैं 1905 से 10 तक। फिर से एक बार सीधा सीधी हिसाब हो जाता है 1905 टू 10। और इन्हीं के ज़माने में एक तरह से गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी, लेकिन दैट इज़ इन द लाइटर वेन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्ट ऑफ 1909, जिसके बारे में कल हम लोग बात कर चुके हैं, कि सेपरेट इलेक्टोरेट को लागू करना, मुस्लिम लीग के फाउंडेशन को बढ़ाना, इंडिया में रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड एंड रूल को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, ऑल दिस डेवलपमेंट्स आर एसोसिएटेड विद लॉर्ड मिंटो। इसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। ये आप मान सकते हो कि ये 1910 से 1916 तक रहते हैं, और इनके ज़माने में ही we have something that is called annulment of the partition of Bengal. Annulment of the, so partition of Bengal जो कि कर्जन करके गए थे, partition of Bengal, इसको ये ख़त्म कर देते हैं। और दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट करते हैं, और दिल्ली के कैपिटल में जब हाथी पर बैठकर एंटर करते हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हुई थी, उसके तहत आपने सुना होगा कि वी हैव सम इंडियन रिवोल्यूशनरी जिन्होंने इनके ऊपर बम फेंक दिया। जान तो इनकी बच गई थी, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द हीरोइक एक्ट्स ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशनरीज। इसमें रास बिहारी बोस थे और सचिंद्र नाथ सान्याल थे। इसके बाद आते हैं चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू के साथ मिलकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। बस एक ही काम है, एक्ट ऑफ 1919। या फिर पंजाब में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जालियांवाला बाग मसाकर, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ये सारे काम यही भाई साहब करते हैं। मतलब सत्याग्रह नहीं करते, रॉलेट एक्ट पास करवाते हैं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं के टाइम में जालियांवाला बाग मसाकर होता है, हंटर कमेटी की लीपापोती होती है, जिसमें कि जनरल डायर को छोड़ दिया जाता है। चौरी चौरा का और नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी इन्हीं के दरमियान चलता है। चौरी चौरा का कांड भी इन्हीं के टाइम में होता है। फिर आते हैं लॉर्ड रीडिंग। इस समय लगता है कि नेशनल मूवमेंट में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया था, एंड स्वराज पार्टी की पॉलिटिक्स चल रही थी। गांधी भी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके थे। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जरूर सर्वाइव करने लगी थी। आपने HRA HSRA का नाम सुना होगा, काकोरी
कांड का नाम सुना होगा, दैट इज अर्ली 1920s। बहुत एक्टिव तो नहीं था पॉलिटिकली, लेकिन हाँ वो फोर्सेज जरूर मोमेंटम गेदर कर रही थी जो बाद में जाकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी। उस जमाने में लॉर्ड रीडिंग थे, रॉलेट एक्ट को इन्होंने रिपील कर दिया था। लॉर्ड रीडिंग का टाइम आप मान सकते हैं कि दैट वाज फ्रॉम 1921 टू 26 मान सकते हैं लॉर्ड रीडिंग का टाइम। फिर उसके बाद वी हैव लॉर्ड इरविन, ये 26 से 31 तक। गांधी इरविन पैक्ट के लिए जाने जाते हैं, और गांधी ने इन्हीं को अपने डिमांड्स दिए थे और बोला था कि अगर आप नहीं मानते हैं तो हम डांडी मार्च करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ेंगे। तो इनका रिलेशन बहुत सारे इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट से है, साइमन कमीशन से है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से है, या फिर जो इंडियन साइड का रिस्पॉन्स था नेहरू रिपोर्ट से, या फिर वो लाहौर सेशन, डिक्लेरेशन ऑफ द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज, ये सारे डेवलपमेंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। लॉर्ड इरविन थोड़े लिबरल माने जाते हैं। लॉर्ड इरविन ने गांधी को मना लिया कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, लेकिन गांधी वहाँ से बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। वहाँ से जब लौटे तब तक वायसराय बदल चुके थे, और वो वायसराय थे विलिंगडन, एंड विलिंगडन इज नोन फॉर रूथलेसली सप्रेसिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये रहे थे 1931 से 36 तक मान सकते हैं, और 1936 से लेकर एक बड़े लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक रहे ये 1944 तक। लॉर्ड लिनलिथगो का नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का नाम बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे इन्होंने ही 1935 के एक्ट के तहत चुनाव कराए, पहली बार कांग्रेस की सरकारें बनी प्रोविंसेस में। एंड देन हिज नेम इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद डिक्लेयरिंग इंडिया अ पार्टी टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसके प्रोटेस्ट में इंडियन मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था। देन ही मेड समथिंग दैट इज नोन एज अगस्त ऑफर, जिसमें कहा था कि अगर इंडियन साथ देंगे तो हम एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, और इसकी डिटेल्स किसी दूसरे थ्रेड में आएंगे। लेकिन अगस्त ऑफर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, दैट वी शुड नो, लॉर्ड लिनलिथगो। और इस ऑफर में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ साथ था कि वार एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्हीं के ज़माने में आता है क्रिप्स मिशन। नाइन 1942। इन्हीं के ज़माने में चलता है क्विट इंडिया मूवमेंट भी। क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने का काम इन्होंने ही किया। फिर ये चले जाते हैं, और लॉर्ड लिनलिथगो के बाद आते हैं वॉवेल, ये कमांडर रहे थे। और वॉवेल इज़ नोन फॉर हिज फेमस प्लान। आप मान सकते हैं कि 1944 से, ये बहुत समय तक नहीं रहते हैं, 1947 तक रहते हैं ये। इन्हीं के ज़माने में शिमला कॉन्फ्रेंस होता है, नाम तो वॉवेल है, इसलिए प्लान को वहाँ से हटा दिया मैंने, शिमला कॉन्फ्रेंस। और शिमला कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होता है वॉवेल प्लान पर। इन्होंने एक प्लान बनाया था जिसमें कि ये था कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और उसमें गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ को छोड़कर सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे। और इसी पे डिस्कशन हुआ था शिमला में, इसी प्लान के ऊपर, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। 1945 में हुआ था ये। मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि कांग्रेस इज़ अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, तो सारे मुस्लिम मेंबर्स मुस्लिम लीग के नॉमिनी होने चाहिए। ऑफिशियल नेगोशिएटर वाज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि काफ़ी आयरनिकल था उस सिचुएशन में। और प्रैक्टिकल पोजीशन ये थी कि अगर आज़ाद को भी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाना होता तो पहले वो रिज़ाइन देते, कांग्रेस से लीग के मेंबर बनते और तब जाते। नेचुरली दिस डिमांड वाज नॉट एक्सेप्टेबल, तो शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। इन्हीं के ज़माने में कैबिनेट मिशन भी आता है। कैबिनेट मिशन ने कहा कि पार्टीशन का आइडिया वायबल नहीं है, जियोग्राफिकली वायबल नहीं है, कि पाकिस्तान के दोनों इलाके काफ़ी दूर रहेंगे, कॉरिडोर की मांग बहुत ही इरेशनल है, कल्चरल सेपरेशन, इकोनॉमिक डिसलोकेशन, ये सब
इन सब ग्राउंड्स के ऊपर। और ये कि माइनॉरिटी की प्रॉब्लम तो सोल्व होगी नहीं, दोनों जगह माइनॉरिटी बच जाएंगे, जो कि काफ़ी रियल भी था। तो कैबिनेट प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन आया जिसने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया, वो हमारे लिए अभी के लिए टॉपिक नहीं है। कैबिनेट मिशन जानिए कि किसके टाइम में आया था, क्योंकि हम लोग गवर्नर्स की बात कर रहे हैं, वाइसरायज की बात कर रहे हैं। तो ये आया था वॉवेल के ज़माने में। वैसे इंसिडेंटली मैं बता दूं कि कैबिनेट मिशन ने कहा था कि पार्टीशन अवॉइड कीजिए और एक 3 टियर सिस्टम बनाइए, जिसमें सेंटर बहुत कमज़ोर होगा, डिफेंस को देखेगा, फॉरेन अफेयर्स को देखेगा और कम्युनिकेशन को देखेगा। बाकी ग्रुपिंग होगी ABC में, जिसमें कि स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करके एक टियर गवर्नमेंट का बना लेंगे, और बाकी स्टेट्स की जो अपने पावर हैं एक फेडरल सिस्टम के तहत वो होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास जो फेडरेशन है वो उसमें 2 टियर्स हैं, यहाँ पे 3 टियर्स की बेसिस पर मैक्सिमम ऑटोनॉमी देने की कोशिश करते हुए कहा गया कि पार्टीशन नहीं, लेकिन लीग ने नहीं माना और डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। डायरेक्ट एक्शन डे भी इन्हीं के ज़माने में हुआ था। फिर माउंटबेटन को भेजा गया, 1947 में ही आए माउंटबेटन, और इनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजा गया कि जाइए पावर ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट कीजिए। तो इन्होंने बाकी बहुत सारी चीज़ों के बाद एक प्लान बनाया जिसको कहते हैं 3rd जून प्लान। पूछा जा सकता है कि हु इज़ एसोसिएटेड विद द 3rd जून प्लान, तो इट वाज माउंटबेटन एसोसिएटेड विद द 3rd जून प्लान। और इसी प्लान के बेसिस पर 2 डोमिनियंस वर क्रिएटेड, इंडिया एंड पाकिस्तान। 2 डोमिनियंस एंड लैप्स ऑफ paramountcy over native states, यानी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ इंडिया, लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी। बाद में इनको रोक लिया गया एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और एज सच इन्होंने इंडियन जो स्टेट्स थे उनके इंटीग्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। So this was a brief summary of. I have tried to mix Hindi and English. I don't know how much I have been successful. So एक्चुअली इस मिक्स में आदमी ना तो खुल के हिंदी बोल पाता है ना खुल के अंग्रेजी बोल पाता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ज़ुबान अलग से लड़खड़ाने लगती है। सीधा हिंदी होता है तो चलता है, सीधा इंग्लिश होता है तो चलता है, लेकिन मेरे ख्याल से फैक्ट्स ही तो हैं, हमें इंटरप्रिटेशन थोड़े ना लिखने हैं यहाँ पे। तो इन फैक्ट्स को तो आप हिंदी इंग्लिश मिला जुला के आप समझ गए होंगे। सो दिस वाज अ लिस्ट ऑफ गवर्नर्स, दैट इज़ गवर्नर्स ऑफ बंगाल, गवर्नर्स जनरल ऑफ बंगाल, Governors General of India, and the Viceroys. Thank you so much.